Okay, bachcho. Now just listen. So till now we have seen about the applications of colloid. Okay. Till date we have seen about the applications of colloid. So now what I will just say in the last one we were seeing colloidals are very useful in a rubber industry. Okay, as me and you know what happens, यहाँ पे जो पेड़ होता है, रबर ट्री जो होता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं. ओके, वहाँ पे एक इंसिजन लगाते हैं और वहाँ पे एक जो लोटे जैसा होता है, एक वैसल होता है, उसके अंदर वो क्या करते हैं, रबर लैटेक्स को इकट्ठा करते हैं. वो क्या होता है, रबर लैटेक्स. सो रबर लैटेक्स इज अ कॉलोइडल इन नेचर. रबर लैटेक्स इज अ कॉलोइडल सॉल्यूशन. ओके, और वो जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल सिस्टम. याद रखना, रबर कैसा है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज कॉलोइड है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको रबर लैटेक्स मिल रहा है, वी आर जस्ट गोइंग टू coagulate is रबर लैटेक्स. हम क्या कहते हैं, इस रबर लैटेक्स को क्या कहते हैं, coagulate दिस रबर लैटेक्स. तो उससे हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, अगर हमने रबर को coagulation किया, मीन्स ये जो लैटेक्स है इसको coagulate किया, देन वी विल गॉट, फाइनली वी विल गेट रबर. समझ रहे हो आप बात. फाइनली हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे बताओ, फाइनली हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, रबर मिल जाएगा. समझ रहे हो मेरी बात, ये सुनो. ओके, चलो उसके बाद किसकी बात करने वाले हम लोग, फिर से एक बार. वी हैव जस्ट सीन द एप्लीकेशंस ऑफ colloid. So here it's in a rubber industry. So as we are knowing that we will get rubber latex from that rubber tree. That rubber latex is a colloidal solution. Okay, and that one is a negatively charged. By coagulation of this rubber latex, we will get rubber. Okay, is it clear? So next to it, industrial product. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे हम ये देख सकते हैं, पेंट्स. ओके, इन पेंट्स, इंक एंड सिंथेटिक प्लास्टिक. आपने सिंथेटिक प्लास्टिक तो देखा ही होगा बच्चों, और आजकल तो बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लास्टिक आते हैं. यस और नो. तो ये जो है सिंथेटिक प्लास्टिक जो है वो, और रबर ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स, रबर ग्रेफाइट lubricants. Okay, so they all are, I can say, colloid. In construction, we are using that cement. You have seen it. So even that cement is one of the colloid. Okay, yes or no? So here we have seen lots of application of colloids in our food, in our construction portion, in our daily life. We are using lots of colloidal system. Okay, so even this rubber is one of the colloidal system. So now just let me start with another. Okay, and that one is like, अब मैं अगर आपको बताऊं तो कौन सा है वो. So now we are going to just listen about in-text and exercise. In-text and exercise. Okay, so let's start with the in-text question and exercise question. Chalo, first of all, let me share something. Okay, let me share this document with you. Yes, are you? Is it visible to you? Yes or no? Hello, tell me, is it visible to you? Clearly visible? Hello? डोंट वरी, आप आंसर दे सकते हैं बच्चे. चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाई डज physics options decrease with the increase of a temperature. So as we are knowing that if physics option is there, if if physics option is there, okay, so here we are knowing that this process is exothermic in nature, exothermic, okay, and according to the last shuttle here, as we are knowing that like increasing in the temperature is not beneficial for the exothermic reaction. Okay, so that's why what will happen if you are going to increase the temperature, the gaseous molecule will dissolve from that surface. Okay, mostly it will affect highly in the physical absorption only. Why are powder substance are more effective adsorbents? So as we are knowing that powder substance, if there are 1 gram of charcoal and I have 1 gram charcoal powder, so here both have a 1 gram weight, 1 gram only, but here the surface area जो है वो ज़्यादा होगा, so surface area is higher, okay, and that's why I can say powder substance are a more effective adsorbents as the specific surface area will increase. Exercise है, ठीक है, so don't worry about that. Next, third one. What is the question? Okay, in the third one, question is that in a Haber's process, hydrogen is obtained by reacting methane with a steam in the presence of Ni as catalyst. The process is known as a steam reforming. Why is it necessary to remove CO when ammonia is obtained by Haber's process? Okay, as we are knowing that this CO will act as a, it is the necessary to remove this CO. Okay, why हम लोग जब अमोनिया को एक्वायर करते हैं एट दैट टाइम इट्स वेरी नेसेसरी टू रिमूव दिस CO. ओके, बिकॉज जो CO बनेगा वो जो है वो आयन कैटालिस्ट के लिए एज अ पॉइजन यूज होगा. इट विल एक्ट एज अ पॉइजन. सो व्हाट दैट पॉइजन कैटालिस्ट विल डू, दे विल जस्ट डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ आयन कैटालिस्ट. वो आयन का जो कैटालिस्ट है उसकी रिएक्टिविटी क्या कर देंगे बच्चों, कम कर देंगे. समझ रहे हो बात? Why is the ester hydrolysis is slow in the beginning and becomes faster at a sometimes? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप समझो, बोलना ये चाहते हैं जब हम एस्टर में पानी डालते हैं तो एसिड और अल्कोहल बनता है, ठीक है. अब बात ये बनती है कि जैसे ही इनिशियल स्टेज होता है तो एसिड नहीं होता है. जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगी धीरे 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 एसिड क्या होगा बच्चों, एसिड जो है वो धीरे धीरे क्या होने वाला है बच्चों, बढ़ने वाला है. एंड एसिड विल एक्ट एज अ सेल्फ कैटालिस्ट. आप समझ सकते हो जो आपका एसिड है वो किस तरह एक्ट करेगा बच्चों, बताओ. आपका जो एसिड है वो सेल्फ कैटालिस्ट की तरह एक्ट करेगा. और उससे क्या होने वाला है बच्चों, अगर वो सेल्फ कैटालिस्ट की तरह एक्ट करेगा तो जैसे एसिड की अमाउंट बढ़ेगी ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे ले जाएगा. तो आपका जो एस्टर का हाइड्रोलिसिस जो है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा. दैट्स ऑल. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस है वो बहुत ही अच्छे से क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाते हैं. दैट्स ऑल. ओके, चलो नेक्स्ट वन. फिर से एक बार, यहाँ पे जो एसिड मिल रहा है ना वो क्या होगा बताओ, एज अ सेल्फ कैटालिसिस की तरह एक्ट करेगा. इसको हम लोग ऑटो कैटालिसिस भी बोलते हैं. याद रखो, ऑटो कैटालिसिस क्या होता है, ड्यूरिंग रिएक्शन whatever product will obtain, that product only that product only will act as a good catalyst. यही बात बनती है. ओके, acid which obtain at the end of the reaction reacts as a catalyst. देखा आपने, सेम थिंग. यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कैटालिस्ट की तरह होगी. तो इनिशियल तो प्रोडक्ट होगी नहीं,
जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगी हमारी रिएक्शन भी अच्छी तरह से बढ़ेगी। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर। 4 क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है सो दे कैन आस्क मी। चलो बच्चों, अगर किसी को कोई भी डाउट है अभी चीजें पूछ सकते हो यहाँ पे, ठीक है? कोई डाउट? ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। चलो चैट में लिख दो एक बार जो भी है, यस और नो, तो मुझे पता चल जाए। 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, थियरेटिकल या पूरी एक्सरसाइज आप खुद भी कर ही सकते हो, लेकिन चलो हम करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके, चलो आंसर आया हुआ है, नो डाउट, यस सर, अंडरस्टूड। ओके, चलो नेक्स्ट वन, 5th क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे। ओके, now just listen. What is the role of डिसॉर्प्शन इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिस्ट? बहुत ही सही है। देखो, अगर यहाँ पे मेरा कैटालिस्ट है, तो एक बार जब आपका सब्सटेंस आ रहा है, आने के बाद वो प्रोडक्ट बन जाए, फिर डिसॉल्व होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये यहाँ से डिसॉल्व नहीं होगा, आप थोड़ा सा सोचो, अगर ये यहाँ से डिसॉल्व ही नहीं होगा तो बाकी के जो रिएक्टेंट वेट कर ले, तो वो जो रिएक्टेंट है उनको स्पेस नहीं मिलेगी, तो आपकी जो प्रोसेस है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। सो ड्यूरिंग द एक्सक्लूजन प्रोसेस द फंक्शन ऑफ द कैटालिस्ट इज टू रिड्यूस द सरफेस एंड क्विकली मूव टू द इनकमिंग रिएक्टेंट। मतलब इनका ये काम होता है कि यहाँ से फटाफट से निकले और जो आने वाले रिएक्टेंट है उनके लिए सरफेस प्रोवाइड करें। ठीक है, आने वाले जो रिएक्टेंट है उनके लिए क्या प्रोवाइड करें बच्चों? सरफेस प्रोवाइड करें, वो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन हम देखते हैं। यहाँ पे डिसॉर्प्शन क्यों ज़रूरी है? भाई कैटालिस्ट से अगर डिसॉर्प्शन नहीं होगा तो और कैटालिस्ट और रिएक्टेंट नहीं आके जुड़ेंगे। डिसॉर्प्शन इज अ नेसेसरी। व्हाट मॉडिफिकेशन कैन यू सजेस्ट इन द हार्डी एंड शुल्ट्ज लॉ? तो हार्डी और शुल्ट्ज लॉ में आप कौन सा मॉडिफिकेशन देना चाहेंगे? तो ऐसे तो हम दे नहीं सकते, लेकिन ठीक है, अगर आपने बोला ही है तो हम क्या बोलते हैं कि हमें पता है कि हार्डी एंड शुल्ट्ज के लॉ में क्या होता है एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं तो हार्डी एंड शुल्ट्ज ने ये बताया, हार्डी एंड शुल्ट्ज ने ये चीज बताई कि सपोज यहाँ पे कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ओके, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा आंसर चाहिए? यहाँ पे मैं NaCl ऐड कर रहा हूँ। सो विच इलेक्ट्रोलाइट इज विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ दिस कॉलोइडल पार्टिकल? सपोज आर्सेनिक सल्फाइड है। चलो मुझे बताओ, जल्दी से आंसर दो, टाइम पास हो रहा है बच्चों। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से कौन सा आयन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कोगुलेशन ऑफ दिस? Na plus. प्लस आयन, Na प्लस, वेरी गुड, Na प्लस आयन इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि हार्डी शुल्ट्ज ने तो ये बताया था कि Na प्लस जो है वो इसको कोगुलेट करेगा, उससे अच्छा Ca+2 करेगा, उससे अच्छा Al+3 करेगा, ये हार्डी शुल्ट्ज ने बताया। लेकिन एक और भी मॉडिफिकेशन ये कर सकते हैं, इवन वी कैन कोगुलेट दिस कोलोइडल सिस्टम with the help of colloidal system having a opposite charge particles। अगर यहाँ पे प्लस वाले पार्टिकल्स है ना बच्चे, यहाँ पे प्लस वाले पार्टिकल्स है ना, तभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तब हम क्या कर सकते हैं बताओ अच्छे से? तब हम क्या कर सकते हैं, इसको कोगुलेट कर सकते हैं। सो इवन coagulation can be done with the help of oppositely charged with the help of opposite charged colloidal solution। अब समझ रहे हो बात? क्या कोगुलेशन Na+ ही कर सकता है?
क्या ये प्लस चार्ज वाला जो होता है FeOH ट्राइस ले लो या फिर Al2O3 ले लो इंटू XH2, तो क्या ये भी तो कर सकते हैं कोगुलेशन, जिसको हम लोग क्या नाम बोलते थे, याद करके मुझे बताओ। अगर अपोजिटली चार्ज कॉलोइडल सॉल्यूशन इसका प्रेसिपिटेशन करता है तो इसको क्या नाम देते हैं, बताओ चलो अच्छे Mutual से। coagulation. यस, दैट वन इज अ म्यूचुअल कोगुलेशन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, म्यूचुअल कोगुलेशन नाम देते हैं। समझ रहे हो बात अभी, यस और नो? Yes. चलो, और किसी को भी डाउट है तो बता दो। तो हार्डियो शूज में हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, सो वी कैन लाइक जस्ट पुट अब यहाँ पे देख लो, Schulz and Hardy show that the greater the flexibility of the ureter ion, the greater is the ability to interfere. This takes to account charge on an ion on volume. There is a size has not taken into consideration. उन्होंने क्या नहीं कंसिडर किया था, साइज कंसिडर नहीं की थी। The size of the ion is as small as well as its ability to polarize. Thus, the rule of Hardy and Schulz can be improved as follow. The amount of a polarization as the added ureter is equal to the amount of polarity emitted. Means ये लोग एक और इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और वो क्या उन्होंने ऐड किया, दूसरा भी उन्होंने मॉडिफिकेशन दिया है कि यहाँ पे जो साइज है, आप समझ सकते हो, size of ion plays important role in a polarization. Means अगर साइज छोटी है बड़ी है, डेंसिटी कितनी है, चार्ज डेंसिटी जो होता है, एक टर्म होता है चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे हम लोग इसका मीन ये निकाल सकते हैं, चार्ज अपन वॉल्यूम। हेलो,